بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو نیت کے حوالے سے چل رہی تھی۔ پچھلی نشست میں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھ کے اس کے پہلے حصے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اب دیگر عبادات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، سخاوت ہے، قربانی ہے، خیر خواہی ہے، جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں ان تمام کو اٹھا لیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے، کہ وہ ادا کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر نیت اور سوچ میں ہلکا سا بھی فتور آ گیا، ہلکی سی بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی آ گئی، فرق آ گیا، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ روزہ بدنی عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک، طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور دیگر اس کی طرف سے حلال کردہ ہوا کاموں سے رکتا ہے، اور مطلب اتنی مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کی نیت اور سوچ میں فتور آ گیا، کہیں کمی آ گئی، تو یہ بھوک اور پیاس اور یہ سب کچھ وہ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھی عمل تو وہ بھی کر رہے ہیں، کام تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں خرابی، سوچ میں یہاں خرابی واقع ہوگی۔ کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سحر اور افطار کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، خود نمائی کا زمانہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ روزہ کشائی ہے، جی یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، سحر کے دسترخوان سجاتے ہیں دکھانے کے لیے۔ تو اس طرح ساری کائنات کو بھی کھلا دیں گے تو اس کا قرب، اس کی سنگت، اس کی معیت اور جو روزے کی روح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ سوچ میں کمی آ گئی، فتور آ گیا، تو وہ رائے گاں چلے جائے گا۔ اسی طرح قربانی ہے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے عمل ہے۔ وہ آپ جو ہے وہ 20-25-30 ہزار کا جانور لیں یا 20-25-30 لاکھ کا جانور لیں، اس سے کوئی سروکار نہیں اسے، کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں وہ فرماتا ہے، کیا ترجمہ اس کا یہ، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ یعنی ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارا ارادہ۔ اگر نیت درست ہے، سوچ درست ہے، اس کی رضا کی ہوئی، تو پھر تو وہ اس کا اجر اور ثواب اور اس کی تمام برکات ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر اس کی رضا کی سوچ نہ ہوئی تو پھر سارے کا سارا عمل جو ہے وہ رائے گاں چلا جائے گا۔ یعنی عمل کر کے بھی، روپیہ پیسہ لگا کر بھی ہم جو ہیں وہ ہاتھ سے خالی ہو گئے۔ مختصراً اب دیکھ لیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اب اس کی روح سے ہم غافل ہیں کہ حج یا عمرہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے بابا جی سرکار سے عرض کیا کہ بابا جی مطلب بندہ اس کے گھر جا رہا ہے تو پھر بھی وہ اس رحمت سے، اس کرم سے، اس عطا سے محروم ہے۔ میرے بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا بتاؤ حج اور عمرے پہ انسان جاتا کیوں ہے؟ گناہ بخشوانے کے لیے، خطائیں معاف کروانے کے لیے،
अपनी साबका जिंदगी से तौबा करके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तो आपने फरमाया तो फिर क्या ये कर रहे हैं? या जो खताएं बख्शवाने जा रहा है, जो अपने गुनाह माफ करवाने जा रहा है, एक मुजरिम बन के उसकी बारगाह में जा रहा है, तो मुजरिम तो ऐसे बन सवर के नहीं जाते, वो अपने स्टेटस नहीं लगाते। आज हरम काबा में हम देखते हैं लोग वहां पर मौजूद, या अब इससे अल्फाज आगे क्या हो सकते हैं कि सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं मुआजा शरीफ, और वहां पर भी तस्वीरों का लगा हुआ है। ये सोच आ कैसे गई? क्या ये ख्याल नहीं कि किसकी बारगाह में खड़ा है? करीम आका की हदीस मुबारक का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे ज़ाहरी विसाल के बाद मेरी बारगाह में आया, मेरे रोजे पे आया, तो ऐसे ही है जैसे वो मेरी ज़ाहरी हयात में आया। यानी हुजूर सामने और हमें स्टेटस, और हम वहां पर तस्वीरें बना रहे हैं। यानी उसकी रूह से ही हम गाफिल हैं। हमारी सोच बाद की तो ये होती है कि लोग हाजी कहेंगे, लोगों की नजर में मोतबर हो जाऊंगा, वहां से टोपियां, तस्बियां, मुसल्ले, जमजम और खजूरें लेके आऊंगा, लोगों में तकसीम करूंगा, लोग कहेंगे भी वाह वाह बड़ा सखी है। हजरत इकबाल ने भी इस पे नुक्ता उठाया। उन्होंने लिखा कि ज़ायराने काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं? क्या वहां से ये लेने गए हो? लम्हा फिक्रिया है। अब ख्याल करें कि अपनी लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से अपने आमाल को जाया कर लेते हैं। मेरे बाबा जी सरकार फरमाते हैं कि इंसान की सबसे पावरफुल चीज उसकी सोच है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो दी, यानी जो ये सोच रहा है वही इसका मुकाम है। जहां तक इसकी सोच की परवाज, वहां तक इसका अपना ही मुकाम। और यानी अपनी सोच से ही ये बुरा है और अपनी सोच से ही अच्छा है, अपनी सोच से ही मोमिन है और अपनी सोच से ही काफिर है, अपनी सोच से ही मुनाफिक है और अपनी सोच से ही मोमिन है, अपनी सोच से ही अर्श मौला पर है और अपनी सोच से ही जमीन पर है, अपनी सोच से ही बादशाह है और सोच से ही गधा है, सोच से ही नेक है और सोच से ही बद है, सोच से ही अल्लाह का वली है और सोच से ही आम इंसान है, सोच से ही अल्लाह को मानने वाला है और इसी सोच और नीयत से उसका इनकार करने वाला है। मेरे बाबा जी सरकार फरमाते हैं कि अगर इंसान सिर्फ इस सोच की परख कर लेना तो वो अल्लाह का वली है। यानी इंसान के वजूद में दो ताकतें हैं, एक रहमान की और एक उसकी दी हुई ताकत शैतान और नफ्स को है। अब जो ख्याल आ रहा है या तो वो रहमान की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। अगर वो इनकी परख कर लेता है कि ये रहमान की तरफ से है, उसमें अमल कर देता है, अमल करना शुरू कर देता है, और जो शैतान की तरफ से है उसको रद्द कर देता है, तो बंदा अगली मंजिल पे चला जाता है, वो उसका कुर्ब हासिल कर लेता है। अब यह फैसला कैसे होगा कि यह किसकी तरफ से है? अगर तो खैर का ख्याल है, भलाई का ख्याल है, नेक ख्याल है, तो वो रहमान की तरफ से, और अगर शर का ख्याल है तो फिर वो शैतान की तरफ से है। और मेरे वही सरकार फरमाते हैं अपनी सोच को परवाज करवाओ। वजूद की मेराज से पहले सोच परवाज करती है, और जब आप सोच को ही परवाज नहीं करवाओगे, सोच को ही उसकी बारगाह में नहीं लेके जाओगे, सोच को अर्श मौला पे नहीं लेके जाओगे, तो यह वजूद भी नहीं जाएगा। अब एक बंदा बारगाह रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी सोच को ले जाता है, बैठा हुआ अपनी जगह है, तो जब सोच हुजूर के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन में चली गई तो बंदा वहां पर मौजूद है। और एक बंदा मदीना मुनव्वरा में हाजिर है और उसकी सोच किसी अपने मुल्क में है, तो वो वहां होकर भी हाजिर नहीं है। इंसान की सोच ही उसको जो है वो सब कुछ करवाती है। अपनी सोच को परवाज करवाओ, और अपनी जब सोच को परवाज करवाओगे
میرے बाबा जी सरकार फरमाते हैं कि फिर तुम्हारा मुकाम खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। पहले सोच जाती है, फिर उसके बाद जब सोच पुख्ता हो जाती है, कायम हो जाती है, नीयत खट में कायम इंसान हो जाता है, तो फिर उसका मुशाहिदे का दरवाजा खुलता है। हम तो अपनी सोच को परवाज ही नहीं करवाते। इतना अहम चीज जो हमें करीमा का ने इस हदीस मुबारक में फरमाई, और अल-मुजमुल कबीर की एक हदीस मुबारक है कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। यानी हम समझते हैं, हमें यहां समझ आना चाहिए कि नियत का मुकाम क्या है और ये हमें कहां से कहां ले जाती है। अपनी सोच को परवाज करवाओ, मेराज नसीब हो जाएगी। अमल को रूह से जुदा ना रखो, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो ऐसे अमल पे गिरफ्त नहीं करता, सवाब अता कर देता है। अगर सोच साले हो जाएगी तो हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की कि जिसमें वो फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। यानी जिस तरह की सोच खुदा के बारे में होगी वैसा ही रब होगा। अब जिसकी जैसी सोच उसका वही खुदा। बाकी मैं अपने नाजरीन पे छोड़ता हूं कि अपनी सोच को बुलंदी की तरफ लेके जाओ। अल्लाह करीम हमें इसकी समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।